الیکشن کے بعد پہلی بار ملاقات کی بمشکل اجازت ملی. میں بھی گوہر صاحب بھی حامد خان صاحب بھی ٹرائی کرتے رہے تھے, 2 بار ہم ادھر آئے بھی تھے, لیکن اجازت نہیں مل رہی تھی. اور کوشش یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جو فیصلے کرنے ہیں, سیاسی فیصلے کرنے ہیں الیکشن کے بعد, جو بہت ضروری فیصلے ہیں, ان سے مشاورت نہ ہو سکے. لیکن بہرحال آج عدالت کے فیصلے لینے کے بعد ہمیں اجازت ملی تو بھرپور گفتگو ان کے ساتھ ہوئی سیاسی معاملات پہ بالخصوص. انہوں نے یہ سب سے پہلے تو کہا کہ ہماری قوم جاگ چکی ہے. قوم نے ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسا مینڈیٹ نہیں تھا, اور اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا اور اس کو آگے لے کے جانا, جمہوریت کو اور مضبوط کرنا اب ہمارا فرض ہے. اس کے لیے انہوں نے ہدایت کی ہے کہ جو 2 بڑی جماعتیں PMLN اور پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے, ان کے علاوہ آپ باقی ساری جو جماعتیں ہیں پاکستان کی جو جمہوریت میں یقین رکھتی ہیں, ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں, اور جہاں جہاں حکومت بنانی ہے ہم نے جس سینٹر پہ ہو, پروونس میں ہو, اس کے اوپر کام شروع کر دیں. اس کے ساتھ چونکہ بہت اہم معاملات ہیں جس کے اندر یہ فیصلے کرنے ہیں کہ چیف منسٹر کون ہوں گے, پرائم منسٹر کون ہوں گے, اسپیکر کون ہوں گے, اس کے لیے انہوں نے کہا ہے, عمران خان صاحب نے کچھ نام تجویز بھی کیے ہیں, اور مزید یہ کہا ہے کہ اس چیز کے لیے عدالت سے رجوع کریں تاکہ جو انفارمیشن پہنچانی ہے عمران خان صاحب تک, تاکہ وہ اپنے فیصلے کر سکیں ایویڈنس کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, ڈاکیومنٹس کے ساتھ, ان معاملات پہ وہ ان تک پہنچائے جا سکیں. تو یہ ایک دوسرا بہت اہم جو فیصلہ تھا انہوں نے کیا. اس کے علاوہ فی الحال کے لیے جو کن جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرنی ہے الائنس کی, وہ بھی انہوں نے ہمیں بتا دی ہیں, اور آپ کو جلد وہ سامنے آ جائیں گی کہ کیا آگے ہونے جا رہا ہے سینٹر پہ بھی اور پروونسز پہ بھی. اس کے علاوہ میرے کولیگز بتائیں گے آپ کو مزید اگر کوئی معاملات ہیں. پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے کوشش کرتی رہی تھی, جب 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھی, سپریم کورٹ کے تھرو بھی اور ہائی کورٹ کے تھرو بھی, کہ الیکشن ہو تو فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو, اس میں سارے پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹ اور ورکر کی یکساں شرکت ہو. وہ آپ لوگوں نے دیکھا, تھرو آؤٹ کوشش کی گئی کہ پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ انتخابات صحیح پارٹیسپیٹ نہ کر سکے, پھر اس کی لیڈرشپ کو بھی دور رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے 5 دن کے اندر 3 سزائیں بھی دی گئی, 14 سال بھی, 10 سال بھی اور 7 سال بھی. کوشش یہی کی گئی پری پول کہ عوام کے پاس ایک میسج جائے کہ خان صاحب ابھی بڑا عرصہ کے لیے جا چکے ہیں, آپ کسی اور طرف دیکھیں. لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے رحم و کرم سے عوام کے طاقت سے سرخرو کیا. پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی مرتبہ ایسی الیکشن ہوئے ہیں جس میں ساری لیڈرشپ جیل میں ہوتے ہوئے بھی, جس کے نشان کے بغیر بھی عوام نے یہ سمجھ لیا تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, غلامی نامنظور ہے. الحمدللہ عوام نے بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے, ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. میں آپ کو ایک فکس فگر بتا رہا ہوں, یہ ہمارے ایگزیکٹ فگر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وائٹ پیپر میں. یہ ہمارے وہ سیٹیں جو ہماری جیتی ہوئی ہیں. الیکشن کمیشن نے جو فگر دیا ہے وہ ہوگا, اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں, یہ 100% ہماری جیت ڈیفیٹ میں گیا ہے. بلوچستان کے 16 سیٹوں میں سے ہماری جیتی ہوئی سیٹیں ہیں 4. پنجاب کے 139 سیٹ میں سے جس پہ الیکشن ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کی, اس میں ہیں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں. اسی طرح سندھ میں 61 سیٹوں میں سے ہم 16 سیٹیں جیت چکے ہیں. KPK میں 44 میں سے 42 سیٹس ہم جیت چکے ہیں. اسی طرح
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में 180 सीटें जीत चुकी है और ये हमारा मैंडेट है, ये अवाम का मैंडेट है। हम आपके साथ वाइट पेपर में उसके फॉर्म 45 शेयर करेंगे कि यही हमारा मैंडेट है, अवाम के इस वोट का एहतराम किया जाए। जब वोट में जाते हैं, वोट कास्ट होता है, पोलिंग स्टेशन पे प्रिजाइडिंग अफसर फॉर्म 45 बनाता है वोट काउंट करके, वहीं प्रिजाइडिंग अफसर रिटर्निंग अफसर के पास जा कर के फॉर्म 47 बनाता है, उनको टैली करा के फॉर्म 48 बनाता है। हमारा मुतालिबा फ़कत इतना है कि जो ये अवामी मैंडेट है, जो डाले गए वोट है, उनका जो काउंट है, अवाम का फैसला, वो हमें मंजूर है। हम अदलिया से भी दरख्वास्त करते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त करते हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी रिमाइंड करते हुए दरख्वास्त करते हैं कि जब हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि प्रिजाइडिंग अफसरान, रिटर्निंग अफसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से हो ताकि वो इन्फ्लुएंस में ना आए, अब अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि जल्द से जल्द इस पे फैसला करे और हमारी मैंडेट, अवाम की मैंडेट वापस आए। अब इस मैंडेट के साथ चलते हुए आपको पता है खान साहब ने यही फैसला किया है, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी हुकूमत बनाए, चाहे वो मरकज़ में, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो KPK में है। KPK में अली अमीन गंडापुर साहब को नामज़द किया गया है एज़ चीफ मिनिस्टर। इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर भी हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नाम शेयर कर लेंगे। सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ और स्पीकर, और पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर की सीट इंशाअल्लाह ताला वो भी आपके साथ थर्सडे तक हम नाम शेयर कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम छोटे पार्टियों को मिला के हुकूमत बनाएंगे, जो कि हमारे पास अपना मैंडेट पूरा है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PML और MQM के साथ हम किसी किस्म का कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी हुकूमत आप बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और इसमें हम कामयाब होंगे। सर, वज़ीर आज़म के लिए आपने कहा खान साहब ने नाम दे दिए, सर कोई अगर खान साहब ने अभी तक वज़ीर आज़म के लिए कोई नाम नहीं दिया, इंशाअल्लाह ताला थर्सडे तक या बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उस नाम पे जो खान साहब नाम देंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। नहीं, हम कोई कमज़ोर हुकूमत हमारी नहीं होगी, हमारी हुकूमत होगी तो वो पब्लिक मैंडेट के साथ होगा इंशाअल्लाह ताला, मजबूत हुकूमत होगी। नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट आ जाएगी, लेकिन इसमें 10 दिन होते हैं कि आप अपने एक्सपेंस फाइल करते, फिर रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन होता है और असम्बली का सेशन करने के लिए आईनी तौर पर 21 दिन होते हैं। यही तो हम इस्तदा करते हैं कि 70 सीटों का झगड़ा तो 2 दिन में रिजॉल्व हो सकता है। आप वो फॉर्म 45 दे के जिसका मैंडेट है उनको दे दे। हम तो कुछ मांग नहीं रहे, हम अपने तरफ से तो रिकॉर्ड नहीं लेके आ रहे। प्रिजाइडिंग अफसरान ने जो फॉर्म 45 वज़ा किया है उनको मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन डिक्लेयर करे वो किसके पास मैंडेट है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं हुए, आपके आज़ाद उम्मीदवार MWM में जाएंगे, जमात इस्लामी में जाएंगे, किस तरफ आपके आज़ाद उम्मीदवार जा रहे हैं? इसके सिलसिले में हमारी बात हुई थी, डिस्कशन हुई थी, इंशाअल्लाह ताला आज शाम तक वो भी आपके साथ शेयर करेंगे किस पार्टी में जा रहे हैं, और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द करने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा, कह रहे हैं अदालतों में जा रहे हैं, वहाँ से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का बता दूं आपको, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आपको याद होगा तैयार हो गए थे, वो प्रोसेस चल रहा है। वही प्रोसेस आज खान साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा उस प्रोसेस को आप जल्द से जल्द ख़त्म करें, उसका इलेक्शंस कराएं जो आपकी रिक्वायरमेंट है कानून की भी, और वैसे भी हमें कराने थे। तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले हफ्ते 10 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके मान लेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। सिर्फ KPK में पूरा मैंडेट पंजाब में नहीं है, अहमदाबाद में नहीं है, जो आप इलेक्शन नताइज चैलेंज करने जा रहे हैं, ज़ाहिर है उस पर टाइम लगेगा, आप अदालतों में जाएंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, तब तक किसी जमात से आपकी एफिलिएशन का फैसला हुआ है? नहीं, किसी जमात के साथ हम एफिलिएशन नहीं कर रहे और इस पर टाइम लगना नहीं चाहिए। रीज़न बीइंग कि अगर आप वो वाले केस उठा लें उस पर टाइम लगता है। अगर आप कहें जी टापे लगे गए, लोगों को निकाला गया, वोट काउंटिंग में फ़र्क हुआ, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था सही, ये प्रोसेस में कोई हेरा फेरी नहीं हुई, ये कंप्लीट होकर के बाद में जब आपके पास आए हैं
तो फॉर्म 45 के बाद जिस वक्त रिजल्ट डिले किए गए, ये सारा कुछ उसके वक्त हुआ इसलिए इलेक्शन कमीशन के पास सारे फॉर्म मौजूद हैं, वो उसके काउंटर फाइल मंगवा लें। मैक्सिमम थी 70 सीट से 70 सीट के आपके पास 200 इलेक्शन है, उसमें कितने पोलिंग स्टेशन पे घपला हुआ इलेक्शन कमीशन का अगर विल है, और हम यही उनकी जिम्मेदारी है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना और आवाम का मैंडेट जिसका है उसको देना, कमीशन उसके मुताबिक फैसला। मैं एक और कहना चाहूँगा, इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप असल काउंटिंग करें और असल सीटों का हिसाब लगाएं तो हम कल हुकूमत बना सकते हैं इंशाल्लाह। वो तो इसमें कोई शक नहीं है मेरी नज़र में कि हम वो हुकूमत बना सकते हैं। सिर्फ ये चूँकि एक मैंडेट हमसे चोरी करने की कोशिश की गई है, उस वजह से ये हमें और कौम को भी दुश्वारी आ रही है हुकूमत बनाने में, लेकिन अदरवाइज़ तो हमें कोई इशू नहीं है अगर आप वाकई ही जेन्युइन इलेक्शन के रिजल्ट्स को देखें। सर नोटा पाकिस्तान लेकिन साहब को आपके बहुत कुछ वोट साहब लोग जो है पार्टी टिकट से बगावत करके नून लीग में शमूलियत कर रहे हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी आई है सर? देखिए 99% हमारे पास है और हमारे साथ इन टच है। हमने इस बात की शदीद मसम्मत करते हैं जिन लोगों को अप्रोच किया गया, उनको पैसों का कहा गया, इवन मेरे पास जो कि सबूत वो पैगाम पहुंचा है, वो इवन 10-10 और 25-25 करोड़ तक ऑफर की गई है। तो ये ख़रीद फरोख्त इस मरतबा ख़त्म होनी चाहिए और ख़रीद फरोख्त हर सूरत ख़त्म हो। यही अंदेशा था हमें कि ये ख़रीद फरोख्त होगी, यही अंदेशा था कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा था, सुप्रीम कोर्ट को कहा था, हाई कोर्ट को कहा था कि बल्ले के बगैर इलेक्शन में जाने न दे, बल्ला एक बुनियादी हकूक़ है। लेकिन हमारे एक के अलावा 2 के अलावा बाकी नहीं गए हैं। लेकिन ये सारा ये है कि ये आज़ाद निशानात पे ये कैंडिडेट्स इंतखाबात लड़ रहे थे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड थे और पार्टी सपोर्टेड थे, पार्टी ने उनका इंट्रोड्यूस कराया था। इसलिए किसी जुमात का इनको अप्रोच करना ये गैर आईनी, गैर कानूनी और बहुत गैर अखलाकी बात।